Hello student, I am Dr. Dharmendra Prasad, Associate Professor, Department of Medicine, GMC Betia. I will teach you today CVA. Student, today we discuss CVA. CVA means cerebrovascular accident. Cerebrovascular accident. मोस्ट कॉमनेस्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सीएनएस का। ठीक है, सीवीए का अदर्स नेम्स है स्ट्रोक या उसको हम लोग ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। स्ट्रोक, ब्रेन अटैक सीवीए को भी बोल सकते हैं, स्ट्रोक और ब्रेन अटैक। अब हम लोग इसका इंट्रोडक्शन में जानेंगे। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है हम लोग का, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड जो है, ये फर्स्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो है ड्यू टू CVA, cerebrovascular accident. Either it represent as a hemiplegia, commonly paraplegia, central type. So third commonest cause, which is the first commonest cause? First commonest cause of death is MI, myocardial infarction, या इसको हम लोग हार्ट अटैक लिटरली बोलते हैं। हार्ट अटैक MI, myocardial infarctions. And second commonest cause of death is cancer. Sir, commonest cause among the cancer, oral cancer is the most important cause of death, or commonest cause of death, or commonest cancer is the oral cancer. So first cause of death is MI, second commonest cause of death is the cancer, and third is the CVA, cerebrovascular accident, or you can also tell it a stroke or brain attack. Frequency. More in male and less in female. Older age groups are commonly affected. Now, what is the definition of CVA? Nothing. It is the impaired supply to the brain leads to infarction. It is nothing. Impaired supply to the brain leads to infarction. This means there is obstruction either due to the atherosclerosis or hemorrhage due to rupture of the vessels. Rupture of the vessels leads to further ischemia, leads to the infraction, and obstruction to the artery further impaired flow
flow to the blood in brain parenchyma. Thus, the impaired supply to the brain leads to infarction in the brain. This is the definition. Impaired supply to the brain. CVA is nothing but impaired supply to the brain leads to infarction in the brain. Now, first of all, which artery supply to the brain mainly? We discuss the arterial supply of the blood. Arterial supply to the brain. First artery is the carotid artery. Carotid artery. And second is the vertebral artery. Vertebral artery. Main portion of brain is supplied by the carotid artery, and lesser part is supplied by the vertebral artery. And the carotid artery is further divided into internal carotid artery and external carotid artery. तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टरी जो है ब्रेन को सप्लाई करती है ज्यादा अमाउंट, लार्ज एरिया, तो कैरोटिड आर्टरी हम लोग को बोलना है। और कैरोटिड आर्टरी रहेगा तो इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड रहेगा दोनों, तो उसमें ऑप्शन रहेगा तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है ज़्यादा पार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, अब हम लोग वर्टिब्रल आर्टरी कैरोटिड आर्टरी के बारे में बहुत डिटेल से जाने। ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन अभी बता देते हैं। तो इंटरनल कैरोटिड जो आर्टरी है, अब किसको किस पार्ट, ब्रेन के किस पार्ट को सप्लाई करती है? तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, पेराइटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, बोथ साइड है ना, पेराइटल एंड अपर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल। टेम्पोरल के अपर पार्ट को ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करती है, और डाईइंसेफेलॉन को सप्लाई करती है, जिसमें डाईइंसेफेलॉन में इपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, मतलब इपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस को सप्लाई करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का भी ब्रांचेज है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अब दूसरा क्या है? वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? तो मिडिल एंड लोअर टेम्पोरल पार्ट को, अपर को करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और मिडिल एंड लोअर को वर्टिब्रल आर्टरी करती है। ठीक है, और ओसिपिटल पार्ट ऑफ द ब्रेन को वर्टिब्रल आर्टरी करती है, और ब्रेन स्टेम को वर्टिब्रल पार्ट करती है, वर्टिब्रल आर्टरी करती है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में आपका पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा आ गया, इसको सप्लाई करती है वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब जो है इसमें कॉमनेस जो है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, MCA, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी जो है ये मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। और जो कॉमनेस लीजन जो होती है, कॉमनेस आर्टरी इन्वॉल्व इन द CVA इज द मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी कॉमनेस आर्टरी है जो इंजर्ड होती है CVA में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, PG में क्वेश्चन आएगा कि which artery is commonly affected in the CVA, then you can tell middle cerebral artery। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, गो नाउ वी डिस्कस द टाइप ऑफ स्ट्रोक डिपेंडिंग अपॉन द
type of lesion or depending upon the etiology. A stroke is due to ischemic, first is the ischemic attack and second is the hemorrhagic stroke. There is ischemia in the brain parenchyma leads to impaired blood supply. Impaired blood supply is either due to the thrombotic lesion or embolic lesion. Thrombotic lesions, in thrombotic lesion, the thrombus formed in the blood vessels leads to narrowing of the vessels, and this leads to decreased supply of the blood to the brain parenchyma, and this impaired supply leads to the CVA, stroke. Thrombotic plaque arises from due to the atherosclerosis. Commonly atherosclerosis, due to the atherosclerosis. And second is the embolic stroke, or cause is the embolic. Embolic is due to the embolization. The emboli comes from the heart, basically from the heart, and it goes to the brain and obstructs the blood vessels. Commonly in the atrial fibrillation, there is a chance of emboli formation. This emboli passes through the carotid artery and goes into the brain, where they obstruct the small vessels, or maybe depend upon the size of the emboli, large vessels also involved. This leads to the CVA. Embolic strokes arises from due to the blood clot, air embolizations, fat embolizations. In case of a trauma, fracture of the bone, the fat emboli goes to the lungs and then after in the brain. In the lungs, they causes pulmonary embolism. This leads to breathlessness, and then the emboli dislodge from where, and they go into the brain, and they obstruct the small or large vessels. This leads to the strokes. Etiology of embolic strokes or thrombotic strokes or ischemic strokes are due to the atherosclerosis. First is the commonest cause is the atherosclerosis, and then embolism, and then heart failure. In the heart failure, cardiac output decreases. Due to the low cardiac output, brain got deprived of the blood. This leads to ischemia, and this leads to the ischemic strokes. Shock. Due to the shock, there is also less cardiac output, and blood supply to the brain hampers. This leads to the CVA. These are the etiological causes. Then hemorrhagic strokes. Hemorrhagic strokes means there is the hemorrhage, there is the rupture of the artery of the brain, leads to the bleeding in surrounding parenchyma. This causes ischemia to the brain substance, also causes pressure symptoms.
pressure symptoms and leads to the stroke. हेमोरेजिक स्ट्रोक का काउजेस क्या है? कॉमनली हेमोरेजिक स्ट्रोक का काउजेस जो है ड्यू टू द सेरिब्रल एन्युरिज्म। सेरिब्रल एन्युरिज्म क्या होता है? एन्युरिज्म इज द परमानेंट डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स। ठीक है, तो ये परमानेंट डायलेटेशन जब होता है या एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेसल्स, तो ये जब डायलेट कर जाता है तो ये क्या होता है कि ये इसकी लाइनिंग पतली हो जाती है, थिन हो जाती है और ये रैप्चर कर जाती है ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू जो भी वो कारण हो गया, इसकी फ्रेजाइलिटी बढ़ जाती है और ये रैप्चर कर जाती है। तो सबसे कॉमनेस्ट कॉज है हेमोरेजिक स्ट्रोक का सेरिब्रल एन्युरिज्म है ना, वो रैप्चर कर जाती है। और दूसरा क्या है कि हाइपरटेंशन, जिसका बीपी बढ़ा हुआ होगा, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा, बीपी, तो ड्यू टू द इंक्रीज बीपी ये क्या होता है कि वेसल्स कहीं भी रैप्चर कर सकता है, कहीं भी रैप्चर कर जाएगा वेसल्स, है ना, वो या एन्युरिज्म को रैप्चर भी कर सकता है या डायरेक्ट वेसल्स को भी रैप्चर कर सकता है। तो ये कॉजेज हो गया हेमोरेजिक स्ट्रोक का, हाइपरटेंशन और एवी मालफॉर्मेशन। एवी एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन जो होता है, ये कॉन्जेनाइटल चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ये एट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से वहाँ आर्टरी वीक होती है और वहाँ वो रैप्चर कर जाती है। तो कॉमनेस्ट कॉज है हेमोरेजिक स्ट्रोक का जो है सेरिब्रल एन्युरिज्म, सबसे कॉमनेस्ट है एन्युरिज्म, एंड देन हाइपरटेंशन एंड देन एवी मालफॉर्मेशन। अब हेमोरेजिक स्ट्रोक, हेमोरेज कहाँ होता है? ये हेमोरेज एक होता है सबरेक्टोवाइड हेमोरेज, सब एरेक्नोइड स्पेस में होता है, और इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक या इधर ये हो सकता है ड्यू टू सबरेक्टोवाइड हेमोरेज से। सबरेक्टोवाइड हेमोरेज में क्या होता है कि एन्युरिज्म बहुत सारा होता है एरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है, तो वो रैप्चर करने से सबरेक्टोवाइड हेमोरेज होता है। जनरली सबरेक्टोवाइड हेमोरेज यंगर एज ग्रुप में होता है। बेसिकली कोई यंग बॉयज आए और उसको उस हेमीप्लीजिया लेके आए, तो हम लोग सबसे कॉमनेस्ट समझेंगे वो हेमोरेजिक हो सकता है यंग एज में। सबरेक्टोवाइड हेमोरेज कॉमनेस है। 20 से 40 के एज में अगर कोई पेशेंट हमारे पास जनरली आता है हेमीप्लेजिया लेके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सबरेक्टोवाइड हेमोरेज को कंसीडर करेंगे और उसको रूल आउट करेंगे कि सबरेक्टोवाइड हेमोरेज है। तो जनरली सबरेक्टोवाइड हेमोरेज जो होता है यंगर एज ग्रुप का हेमोरेज है। इंट्रासेरिब्रल हेमोरेज किसी एज में हो सकता है, लेकिन ये ओल्डर ग्रुप में होता है, ओल्डर में होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका रिस्क फैक्टर। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या स्ट्रोक का रिस्क किसमें ज़्यादा है, कब ज़्यादा होता है? जैसे अगर पहला ले रिस्क फैक्टर्स एज, ओल्डर एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। ओल्डर एज ग्रुप में कॉमनेस्ट कॉज है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। हेमरेज कम है कंपैरेटिवली। अगर पूछेगा कि हेमरेजिक स्ट्रोक कॉमनेस्ट है कि इस्कीमिक स्ट्रोक, तो बताना है कि इस्कीमिक स्ट्रोक कॉमनेस्ट है। और इस्कीमिक जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस। ओल्ड एज में क्या होता है कि जो भी वेसल्स है, सब वेसल्स जो है स्टिफ हो जाता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से स्टिफ हो जाता है और स्टिफनेस की वजह से ब्लड प्रेशर इसकी बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से इससे क्या है कि ल्यूमेन कहीं पतली हो जाती है, आगे में सप्लाई नहीं होता है, उसके चलते स्ट्रोक हो जाता है, या कहीं स्टिफनेस की वजह से रैप्चर हो जाती है, रैप्चर से वो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज हो जाएगा। तो एज फैक्टर्स है, ओल्डर एज ग्रुप में ये कॉमनेस्ट है। और यंगर में अगर होता है तो हम सबसे पहले सबरेक्टोवाइड हेमरेज सोचेंगे, ठीक है, जनरली 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप में होगा। अब सेक्स में एक कॉमनेस जो है मेल में है, मेल में है। क्यों है? मेल में, वर्किंग फीमेल में, वर्किंग मेल में एक प्रीडोमिनेंट कॉमनेस्ट है, इसका रिस्क फैक्टर्स है मेल।
फीमेल जो है कम है, फीमेल में रिस्क फैक्टर कम। अब तीसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट होगा तो उसमें सीवीए का चांसेस ज़्यादा है। हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कहीं भी आर्टरी उसका ब्रेन में रैप्चर करेंगे और उससे सीवियर स्ट्रोक हो जाएगा। डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ के पेशेंट को भी उसमें सीवियर का ज़्यादा सीवियर ज़्यादा हो सकती है डायबिटीज़ के पेशेंट में। उसमें भी क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह होगी डायबिटीज़ में, ठीक है। डायबिटीज़ में एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और हाइपरलिपिडीमिया होगा डायबिटीज़ में, और इसके चलते क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और इसके चलते इस्कीमिया प्रोड्यूस करेगी, है ना। इस्कीमिया होगा ब्रेन में और ये सीवियर। स्मोकिंग, स्मोकिंग जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उसमें भी सीवियर का सबसे कॉमनेस्ट कारण है। स्मोकिंग पर्सन्स में ज़्यादा सीवियर हो सकता है, कारण कि स्मोकिंग से क्या होता है कि वेसल्स जो आर्टरी है स्टिफ हो जाती है, वाजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वाजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आगे का सप्लाई कम जाएगा, वाजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, जिससे इस्कीमिया प्रोड्यूस होगा। तो स्मोकिंग लेड्स टू द इस्कीमिया टू द ब्रेन पेरेन्काइमा एंड देन लीड्स टू सीवियर। ये स्मोकिंग हो गई। अल्कोहल, अल्कोहलिक एडिक्शन टू द अल्कोहल आल्सो लीड्स टू द सीवियर। अल्कोहल भी सबसे पहले ये डायलिटेशन का काउज करेगा, आर्टेरियल डायलिटेशन, और उसके बाद में कंस्ट्रिक्शन काउज करता है। तो अल्कोहलिक पेशेंट प्रोन होता है सीवियर से। अल्कोहलिक पेशेंट में सीवियर का ज़्यादा चांस रहता है। कार्डियक डिजीज, कार्डियक डिजीज में जनरली क्या है कि एट्रियल फिब्रिलेशन, एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन में सबसे कॉमनेस्ट कॉज है कार्डियक डिजीज में सबसे कॉमनेस्ट कॉज है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के चलते एम्बोलाई बनेगा, एम्बोलाई वो जाके थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस जाके ब्रेन में लॉज करेगा और उससे सीवियर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जो कार्डियक डिजीज में कार्डियक डिजीज में और हार्ट फेलियर, सीसीएफ में क्या होगा कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम होगी, उसके चलते भी इस्कीमिया होगी, उसके चलते भी सीवियर होगा। तो कॉमनेस्ट कॉज अगर कार्डियक रीजन में है तो कॉमनेस्ट एग्जाम में पूछता है, तो वो क्या बोलना है, ड्यू टू एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में ही कॉमनेस्ट एम्बोलाई बनता है और वो लॉज होती है। तो कार्डियक डिजीज एमआई के केस में भी होता है, एमआई के केस में भी एम्बोलाई वगैरह बनता है और वो जाके ब्रेन में लॉज करेगा और सीवियर प्रोड्यूस करेगा। और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, अगर किसी पेशेंट का स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि उसके फादर, उसके मदर्स जो है उनकी कॉज सीवियर से हुई है, तो सीवियर उससे उसके बच्चे में होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री फैक्टर्स। ओबेसिटी की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा ओबेस पर्सन को सीवियर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ये काउज के मेन है हाइपरलिपिडीमिया। ओबेसिटी में क्या होगा, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगी और जाके एथेरोस्क्लेरोसिस होगी और हाइपरलिपिडीमिया होने से हाइपरलिपिडीमिया लिपिड प्लेक बनेगा और जाके वो आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करने से ये सीवियर प्रोड्यूस होगा। पाइल्स के पेशेंट को भी सीवियर का ज़्यादा चांसेस रहता है। पाइल्स में क्या होता है कि डिप वेन थ्रोम्बोसिस जैसे होता है, उसी तरह से पाइल्स में भी थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है। थ्रोम्बस ये जाके लॉन्च कर जाता है ब्रेन में और ये सीवियर प्रोड्यूस करता है। पॉलीसाइथीमिया जो है हाइपर कोगुलेबिलिटी के कारण से, हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है उसकी वजह से सीवियर होता है। प्रेगनेंसी में भी हाइपर कोगुलेबिलिटी होती है, उसके चलते ये सीवियर होता है। उसमें ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने से भी सीवियर होता है। ये ड्यू टू ओसीपी जनरली क्या करता है, हाइपरलिपिडीमिया कॉज करता है। हाइपरलिपिडीमिया कॉज करता है। इसमें ओसीपी में जितने ओसीपी है जनरली उसमें जो
प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होती है, और वो जो हार्मोन्स है हेपेटिक फंक्शन को इम्पेयर करती है, और से हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया के कारण वो सीवीए होता है। तो ये सब हो गए आपका रिस्क फैक्टर। स्टार्ट। अब हम चले सीवीए के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानने के लिए। साइन एंड सिम्टम्स, सीवीए के पेशेंट को हम लोग जब एग्जामिन करेंगे तो क्या मिलेगा, वो सबसे पहले हम लोग को देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसका सेंसोरियम अल्टर्ड रहेगा। हो सकता है वो अनकॉन्शस हो सकता है वो सेमी कॉन्शस हो सकता है स्टिप्रोज हो, ठीक है। तो उसमें अल्टर्ड उसका सेंसोरियम जो रहेगा अल्टर्ड होगा, और पेशेंट जो है दूसरा डिसओरिएंटेड होगा, डिसओरिएंटेड। तीसरा हो सकता है उसका स्पीच लॉस हो या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो, है ना। स्पीच कंट्रोल कहाँ से होता है, ब्रोकाज एरिया से। जनरली स्पीच लॉस जो होता है वो जिसको राइट साइडेड हेमिप्लीजिया रहेगा उसका स्पीच लॉस होगा, और लेफ्ट साइडेड वाला में नहीं होता है। वो आगे बताएंगे क्यों होता है, ठीक है। तो स्पीच लॉस जो आपका रहेगा, स्पीच कहाँ से कंट्रोल होता है, ब्रोकाज एरिया ऑफ द ब्रेन से, ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करेगा, हेमिप्लीजिया लेके प्रोड्यूस करेगा। मतलब एक साइड उसका जो है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पैरालाइज रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं रह सकता है, या ग्रेड 1 पावर हो सकता है, या ग्रेड 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, ठीक है। तो हेमिप्लीजिया होगा, एक साइड पैरालिसिस, यानी हेमिप्लीजिया और हेमीपैरेसिस दोनों अलग अलग चीज़ है। हेमिप्लीजिया इज द कंप्लीट पैरालिसिस, इसमें कंप्लीट पैरालिसिस होगा, पेशेंट चल नहीं सकता है। और हेमीपैरेसिस में पेशेंट चल सकता है, वीकनेस उसको मिलेगा, या राइट साइड का हेमिप्लीजिया हो तो राइट साइड में वीकनेस रहेगा, लेफ्ट का हो तो लेफ्ट साइड में वीकनेस मिलेगा, तो उसको हेमीपैरेसिस बोलेंगे। पैरेसिस मीन्स वीकनेस, प्लेजिया मीन्स टोटल पैरालिसिस। बॉवेल एंड ब्लैडर दोनों इन्वॉल्व होगा। बॉवेल उसका मूवमेंट जो होगा इन्वॉल्व होगा, और बॉवेल मूवमेंट जनरली जो क्या ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, स्लगिश होता है ना। पेशेंट को स्टूल 3, 4, 5 दिन के बाद में पास हो सकता है। यूरिनरी रिटेंशन होगा, है ना। यूरिनरी ब्लैडर का भी पैरालिसिस हो जाता है, और यूरिनरी जो रिटेंशन होगा, पेशाब उसका रुका रहेगा, या पेशाब उसका ड्रिवलिंग होते रहेगा, चूते रहेगा, पेशाब निकलते रहेगा, तो ब्लैडर एंड बॉवेल भी इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में उसका कोऑर्डिनेशन पेशेंट का ठीक नहीं रहेगा, है ना। पेशेंट अगर वीकनेस है तो कोऑर्डिनेशन उसका ठीक नहीं रहेगा। जैसे जनरली कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल करता है सेरिबेलम करता है, सेरिबेलर अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, सेरिबेलर में इन्वॉल्वमेंट होगा अगर, तो उसका कोऑर्डिनेशन गड़बड़ रहेगा पेशेंट का, ठीक है। और क्या साइन ऑफ है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर मिलेगा। जैसे ब्रेन हैमरेज के केसेस में उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसमें क्या उस पेशेंट को होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, हेडेक एंड वॉमिटिंग होगा, ठीक है। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये साइन ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर से पेशेंट में प्रेजेंट एज ए क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया जनरली होगा बोथ लो ऑफ द, ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन का अगर दोनों पार्ट्स, अगर दोनों तरफ लीजन रहेगा तब ये पैराप्लेजिया प्रोड्यूस करेगा, पैराप्लेजिया, ठीक। और क्वाड्रिप्लेजिया अगर ब्रेन स्टेम में लीजन होगा, ब्रेन स्टेम में लीजन होने से एक क्वाड्रिप्लेजिया कॉज करेगा। मतलब कि बोथ अपर लिम्ब एंड प्लस बोथ
lower limb. So quadriplegia is the paralysis of both upper limb and lower limb. Paraplegia is the paralysis of both lower limb, and hemiplegia is the paralysis of one-sided upper limb and lower limb. There is a difference between hemiplegia, paraplegia and quadriplegia. Now, Start. अब देखो ब्रेन, तुम लोग जानते होगे कि ब्रेन का दो हेमिस्फीयर होता है, ये मान लो राइट है एंड लेफ्ट है, ठीक है। राइट वाले को क्या होता है, राइट जो ब्रेन है वो लेफ्ट जो है लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। राइट अपर लिम्ब एंड राइट लोअर लिम्ब को कंट्रोल करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन होता है लेफ्ट को कंट्रोल करता है। अगर इसमें लीजन कहीं पे हो, लेफ्ट के पार्ट में लीजन हो, तो जनरली क्या होता है कि राइट में लीजन आएगा, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मली जो है राइट हैंडेड जो भी पर्सन है, राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर जो रहता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर प्रीडोमिनेंट होता है, इसको प्रीडोमिनेंट बोलते हैं, प्रीडोमिनेंट होता है। मतलब कि राइट एंड लेफ्ट में लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा फंक्शनिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रोकाज एरिया होता है, ब्रोकाज एरिया दोनों साइड होता है, लेकिन चूंकि लेफ्ट में ब्रोकाज एरिया जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रीडोमिनेंट है, तो लेफ्ट वाला ब्रोकाज एरिया जो है ज़्यादा काम करता है, मतलब कि लेफ्ट प्रीडोमिनेंट है और राइट प्रीडोमिनेंट नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। इसीलिए हेमिप्लेजिया जब राइट साइड का होता है, मतलब लीजन लेफ्ट में होता है, तब क्या होता है कि उस मरीज का आवाज़ चला जाएगा, वो मरीज बोल नहीं पाएगा, उसको लकवा मारेगा, उसको लकवा पैरालिसिस हिंदी में बोलते हैं लकवा। तो लकवा मारेगा दाहिने तरफ, तो दाहिने तरफ जिसको लकवा मारेगा वो बोलेगा नहीं, और अगर बाएं तरफ लकवा मारेगा तो बाएं लिम्ब में जब पैरालिसिस होगा वो राइट से कंट्रोलिंग होता है, तो राइट का जो ब्रोकाज एरिया प्रीडोमिनेंट नहीं होता है, तब उसमें जो लेफ्ट साइड जिसको लकवा मारेगा वो पेशेंट बोल सकता है ना। तो पेशेंट बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, अगर पेशेंट बोल रहा है तो बिना देखे हुए हम बोल सकते हैं उसको, अगर पैरालिसिस है तो बोल सकते हैं कि नहीं उसका लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड प्रीडोमिनेंट होता है, इसलिए अगर लेफ्ट में लीजन है तो पेशेंट का आवाज़ चला जाएगा, स्पीच लॉस हो जाएगा, या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो सकता है, तुतरा के बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, उसका आवाज़ साफ नहीं आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड, तो जनरली हम लोग में क्या होता है कि राइट हैंडेड जो काम करते हैं लोग, तो उसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रीडोमिनेंट होता है। तो जनरली मेल में, फीमेल में देखा गया है कि दोनों हेमिस्फीयर जो है वाइस वर्सा काम करता है, दोनों किसी में 30% केसेस में देखा गया है कि दोनों हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है। इसीलिए जो फीमेल है मेल के तुलना में गाड़ी बढ़िया से ड्राइव कर सकती है, इसलिए उसका दोनों ब्रेन काम करते रहता है, दोनों साइड ऑफ हेमिस्फीयर इक्विवेलेंट रहता है ना। तो एक मेल की तुलना में फीमेल अच्छा से ड्राइव कर सकती है, उसका कोऑर्डिनेशन पावर ज़्यादा होता है। ये MRI के थ्रू पता चला है, ठीक है, ये अभी जो है पता चला है कि जो फीमेल में बोथ जो हेमिस्फीयर है डोमिनेंट होता है। और ऐसे राइट हैंडेड पेशेंट में लेफ्ट हेमिस्फीयर रहेगा, और लेफ्ट हैंडेड पेशेंट में राइट हेमिस्फीयर जो प्रीडोमिनेंट होगा। तो जो प्रीडोमिनेंट होगा अगर उसमें लीजन होगा तो उसकी स्पीच चली जाएगी, ठीक है। और दूसरे साइड का हमेशा दूसरे साइड का पैरालिसिस हुआ, क्यों होगा पैरालिसिस कि जितने भी नर्व्स जो है हेमिस्फीयर के ये क्रॉस करते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे क्रॉस करते हैं। तो क्रॉसिंग ऑफ द फाइबर जो होता है ब्रेन स्टेम में होता है, इसीलिए जो है ये लेफ्ट साइडेड
कंट्रोल करती है राइट साइड को, और राइट हेमिस्फीयर जो करती है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर, अगर इसी में हम लोग का लीजन अगर ब्रेन स्टेम के पास में हो जाए तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इन्वॉल्व हो जाएगा, दोनों पैर दोनों हाथ और दोनों पैर, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रिप्लेजिया, यानी वो उसका दोनों हाथ और दोनों पैर से पैरालिसिस मार देगा। तब समझेंगे किस तरह का है। तो मेरा लीजन कहाँ है? ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में, उसके नीचे भी हो सकता है। कहाँ? ये जो ब्रैकियल प्लेक्सस के ऊपर, मतलब ब्रेन स्टेम से लेके C1 से लेके C7 के बीच में कहीं भी लीजन होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा क्वाड्रिप्लेजिया करेगा। अगर ब्रेन में बायलेटरल लीजन हो, दोनों तरफ हो, तो वो पैराप्लेजिया भी कर सकता है। जनरली पैराप्लेजिया जो है ये CVA में नहीं आता है। पैराप्लेजिया मेनली कॉज करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी में, स्पाइनल कॉर्ड का इंजुरी होगा किसी लेवल में, तो ये पैराप्लेजिया कॉज करेगा। जनरली पैराप्लेजिया कॉज करेगा तो ब्रैकियल प्लेक्सस से नीचे रहेगा तो पैराप्लेजिया कॉज करेगा। पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, तो ये क्या है कि ब्रैकियल प्लेक्सस जो है C7 से नीचे, मतलब ब्रैकियल प्लेक्सस जो है तुम्हारा ये T1 के नीचे जो बनाएगा, तो वो ब्रैकियल प्लेक्सस के नीचे जो होगा वो पैराप्लेजिया कॉज करेगा। ठीक है, अब ब्रैकियल प्लेक्सस के लेवल पे होगा वो भी क्वाड्रिप्लेजिया कॉज करेगा, और अप टू हमारा ब्रेन स्टेम ये क्वाड्रिप्लेजिया कॉज करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या साइन मिलेगा स्किन में, कैसे हम लोग डायग्नोस करेंगे। स्किन में जब देखेंगे जेंथलाज्मा स्किन में रहेगा। ठीक है, फैट का डिपोजिशन इससे ये शो करता है हाइपर कोलेस्ट्रीमिया, मतलब कि ये एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस हुआ। ठीक है, तो हम लोग सोचेंगे कॉजेज इसका एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस, रैशेस मिल सकता है स्किन में, रेड स्किन मिलेगा, सेलुलाइटिस मिलेगा। सेलुलाइटिस अगर किसी लिम्फ का सेलुलाइटिस है, जैसे डिप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया पैर में, तो उसमें इमोलाई वहाँ से लॉन्च कर जाएगा। ठीक है, तो ये सेलुलाइटिस। और प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, उसमें भी ये आफ्टर बर्थ जनरली क्या होता है, इमोलाई थ्रोम्बस जाके फंस जाता है ब्रेन में। ड्यूरिंग नहीं, आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है हेमिप्लीजिया लेके, तब उसको समझना कि थ्रोम्बोइम्बोलिक फेनोमेना और डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से उसको पैरालिसिस मारा है, हाइपरकोगुलेबिलिटी होता है उस समय। ठीक है, उसके चलते इसको पैरालिसिस मारता है। आई में हम लोग देखेंगे आर्कस सेनाइल्स जो है, ये इससे पता चलेगा कि इसका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है। ठीक है, हाइपरटेंशन, आई में हाइपरटेंसिव चेंजेस होगा, है ना, फंडस में। तो इससे हम लोग समझेंगे कि हाइपरटेंशन की वजह से उसमें जो चेंजेज आएगा आई में, तो इससे हम लोग ये बता सकते हैं इसको कि हाइपरटेंशन की वजह से इसको सीवियर हुआ है। रेटिनल इमोलाई, अगर रेटिना में इमोलाई अगर फंसा हुआ है तो हम लोग सोचेंगे इसका कॉज इमोलाई होगा सीवीए का। सीवीएस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को, तो हम सोचेंगे कि इसमें जो है जो इमोलाई जो है हार्ट से निकल के और ब्रेन में लॉन्च कर गया है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन में कॉमन होता है इमोलाई। ठीक है, सीवीएस। अब हाइपरटेंशन भी कॉज हो सकता है सीवीएस में। जेवीपी में क्या होगा, इंक्रीज जेवीपी रहेगा पेशेंट को, इसका मतलब कि हार्ट फेलियर में है पेशेंट पे, हार्ट फेलियर की वजह से भी उसको सीवीयर होगा। ठीक है, तो कोई भी वल्वुलर डिजीज में, कोई भी हार्ट के वल्वुलर डिजीज में इम्बोलाई फॉर्मेशन हो सकता है और ब्रेन में लॉन्च कर सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पल्स जो होता है इरेगुलर होता है, इरेगुलर। अगर पेशेंट तुम्हारे पास में आएगा और उसका पल्स देखोगे कि इरेगुलर मिल रहा है और हेमिप्लेजिया है, तब उसको समझना कि ये क्या है, इम्बोलस के चलते हुआ है, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म होगा इसको, सॉरी इम्बोलिज्म है ना, ब्लड क्लॉट जाके ब्रेन में फंस गया है। ठीक है,
तो इसको थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वगैरह देंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा पेशेंट्स। रेस्पिरेटरी में साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा का साइन मिलेगा, बायलेटरल बेजल क्रैम्प्स मिलेगा, ठीक है। एब्डोमेन में देखेंगे तो ब्लडर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है। लोकोमोटर में तुम्हारा पैर में वीकनेस रहेगा, वन साइडेड राइट और लेफ्ट जिस साइड का पैरालिसिस रहेगा उस तरह का वीकनेस रहेगा, ठीक है। अब इसमें साइट ऑफ लीजन हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे साइट ऑफ लीजन, ठीक है। साइट ऑफ लीजन डिसाइड करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमको जानना है थोड़ा बहुत क्रेनियल नर्व्स के बारे में। तो याद रखना पहले ब्रेन का पार्ट्स, मेनली ब्रेन का पार्ट्स जो है, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता है? पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा तो ब्रेन का ये मेनली पार्ट्स है हम लोग क्लिनिकल साइट ऑफ लीजन डिसाइड करने के लिए। तो क्रेनियल नर्व्स याद रखना तुम लोग, क्रेनियल नर्व्स का ऑरिजिन कहाँ से है ना। तो क्रेनियल नर्व्स जो होता है फर्स्ट एंड सेकंड जो होता है फोर ब्रेन से निकलता है, और थर्ड एंड फोर्थ जो है वो तुम्हारा मिड ब्रेन से निकलेगा। पॉन्स जो है 5, 6, 7, 8 ये तुम्हारा पॉन्स से निकलेगा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से तुम्हारा 9, 10, 11, 12 ये 4 निकलेगा। तो याद रखना कि फोर ब्रेन और मिड ब्रेन से 2 निकलता है, और पॉन्स और मेडुला से 4 निकलता है, ठीक है। तो हम लोग साइट ऑफ लीजन डिसाइड करेंगे। अगर मेरा जो हमारा जो पैरालिसिस है वन साइडेड पैरालिसिस है, मान लो हेमिप्लीजिया है, और मेरा क्रेनियल नर्व्स अगर वन और फर्स्ट और सेकंड इन्वॉल्व है, तो हम समझेंगे कि इसका लीजन जो है फोर ब्रेन में है, ठीक है। अगर थर्ड एंड फोर्थ इन्वॉल्व है तो हम इसका समझेंगे ब्रेन के किस पार्ट में है, तो मिड ब्रेन में है, और पॉन्स में होगा 5, 6, 7, 8 जो है। अगर ये इन्वॉल्व होगा, फेशियल का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसका मतलब है कि इसका लीजन पॉन्स में है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर लीजन रहेगा तो 9, 10, 11, 12 अगर इन्वॉल्व कोई है और हेमिप्लीजिया है, तो हम लोग समझेंगे कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में इसकी लीजन है। तो ये साइट ऑफ लीजन डिसाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि कहाँ से कौन सा क्रेनियल नर्व्स निकला है, और जिस लेवल में क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होगा उसी साइड में लीजन होगा। तो कॉमनेस जो है, अब तुम जान लो कि कॉमनेस साइट ऑफ लीजन क्या होता है। इंटरनल कैप्सूल, देखो याद रखना कि कॉमनेस साइट ऑफ लीजन, कॉमनेस साइट ऑफ लीजन, कॉमनेस साइट ऑफ लीजन क्या होता है? इंटरनल कैप्सूल। पीजी में पूछा जाता है इंटरनल कैप्सूल। कॉमनेस साइट ऑफ लीजन इज द इंटरनल ऑफ कैप्सूल। पूछेगा कॉमनेस आर्टरी इन्वॉल्व इज द कॉमनेस आर्टरी कौन सा इन्वॉल्व होता है? तो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और कॉमनेस टाइप ऑफ लीजन क्या होता है? कॉमनेस कॉज ऑफ सीवीए क्या होता है? कॉमनेस कॉज ऑफ सीवीए एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बो कॉमनेस आर्टरी हो गया, कॉमनेस साइड ऑफ कॉमनेस ये हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस को इस्कीमिया, इस्कीमिक चेंज, इस्कीमिया है या एथेरोस्क्लेरोसिस।
तो ये कॉमनेस याद रखना है कि कॉमनेस साइट इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। कॉमनेस साइट इन्वॉल्व में बोलना मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और कॉमनेस रीजन होगा इस्कीमिक होगा या ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये तुम्हारा साइन एंड सिम्टम्स हो गया। अब हम लोग चले इसके डायग्नोसिस पे या इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें कराएंगे। अब आएंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कॉम्बिनेशन तुम्हारा सीटी स्कैन, स्कैन ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन का सीटी स्कैन हम लोग कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब देखो इसमें अगर व्हाइट स्पॉट मिलेगा, व्हाइट स्पॉट मिलेगा, व्हाइट लीजन मिलेगा, तो समझना है कि हेमरेज है। और अगर ब्लैक मिलेगा स्पॉट, ब्लैक, तो ये इस्कीमिया है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, ठीक है। तो व्हाइट मिलेगा तो इस्कीमिया, इस्कीमिक स्ट्रोक, ठीक है, या इम्बोलिक स्ट्रोक, ठीक है, इसमें मिलेगा। हेमरेज में हमेशा व्हाइट मिलेगा, ये व्हाइट स्पॉट मिलेगा, उजला। तो सीटी स्कैन से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद में कहाँ साइट ऑफ रीजन है डिसाइड कर लेंगे सीटी स्कैन से, ठीक है। अब दूसरा जो टेस्ट है सीटी स्कैन के बाद में एमआरआई, इसमें हम लोग साइट ऑफ रीजन डिसाइड करते हैं। ओल्ड लीजन्स वगैरह है, ओल्ड इन्फार्क्ट वगैरह है, तो हम एमआरआई से ये क्लियर हो जाता है कि ओल्ड है कि न्यू है, ठीक है। ऐसे सीटी से ही पता चलता है, लेकिन जहाँ कन्फ्यूजन है वो हम लोग एमआरआई से कंफर्म हो जाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये जनरली सिविल में हो गया। इस एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सॉरी कैरोटिड एंजियोग्राफी, ठीक है। या इसमें हम लोग ब्रेन का एंजियोग्राफी कराएंगे, ठीक है। एंजियोग्राफी से हमको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या डिस्टिंग्विश करेंगे, ये भी मालफॉर्मेशन है कि नहीं, ये भी मालफॉर्मेशन है कि नहीं, निर्जम है कि नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है ब्रेन की एंजियोग्राफी कराते हैं, ये भी मालफॉर्मेशन को जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद में तीसरा इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे। ये हम लोग देखेंगे कि हार्ट में ही गोलाई है कि नहीं, हार्ट में थ्रोम्बस है कि नहीं, क्लॉट है कि नहीं, ठीक है, क्लॉट है कि नहीं। क्लॉट है कि नहीं, इससे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कॉज है सीए का, ठीक है, इको से। तो हम लोग इसमें सीटी, एमआरआई, ब्रेन का एंजियोग्राफी और इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्ट्रोक और ड्यूरेशन ऑफ इवोल्यूशन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है सीवीए में, इसको जानना है तुम लोगों को। जैसे टीआईए, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। इसमें क्या होता है कि फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हुआ डेवलप किया। टीआईए में क्या होता है, टीआईए में कि फोकल जो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट शुरू हुआ और ये विदिन 24 आवर्स में, डिसअपेयर कर जाता है, डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि
शुरू में उसको लगेगा मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है, ठीक है। 1-2 घंटे में उसको लगेगा हाथ काम नहीं कर रहा है, और फिर धीरे धीरे वो 24 घंटे के अंदर में अपने आप रिकवर कर जाएगा, या मेडिकेशन से करे या जनरली अपने आप करे। अगर 24 घंटे के अंदर में अगर रिकवर कर जाता है तो उस टाइप के स्ट्रोक को हम लोग बोलते हैं TIA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक। अब एक स्ट्रोक है, उसका वेरिएंट स्ट्रोक, इसमें क्या होता है कि सिम्टम्स जो है 24 आवर्स में डेवलप करता है, 24 आवर में ये डेवलप करता है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव स्ट्रोक क्या होता है, या इसको बोलते हैं स्ट्रोक इन इवोल्यूशन। मतलब क्या होता है इसमें फोकल सिम्टम्स, पहले फोकल सिम्टम्स डेवलप करेगा। मतलब कि एक हाथ में या तो टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा, टिंगलिंग नर्वनेस होने लगेगा, एक में पैरालिसिस होगा, और धीरे 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 बढ़ते जाएगा। एक हाथ से दूसरे पैर में शुरू हो जाएगा पैरालिसिस, तो पहले एक हाथ से पैर में जाएगा, या पैर से शुरू होगा तो हाथ में जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, और ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करके ये 24 से 48 घंटा में वो फिक्स हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव स्ट्रोक, ठीक है। और एक टाइप ऑफ स्ट्रोक है कंप्लीट स्ट्रोक। कंप्लीट स्ट्रोक का मतलब है ये फोकल या कंप्लीट पैरालिसिस होगा, एट सडन होगा, सडन होगा, और ये कंप्लीट होगा। ये इंक्रीज नहीं करेगा, वो जितना है उतना ही रह जाएगा। ये रिकवरी होगा इसमें, ठीक है, लेकिन ये इंक्रीज नहीं करेगा। उसको हम लोग कंप्लीट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाए हम लोग ट्रीटमेंट पर। उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे सीवी के पेशेंट को। तो सबसे पहले सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद में थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें ज़रूरत होगा थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे। जनरली थ्रोम्बोलाइसिस हम लोग इन्फेक्शन के केस में, इन्फेक्शन थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के केस में, या इम्बोलिक फेनोमेना के केस में हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, या थ्रोम्बोइम्बोलिक के केसेस में उसी में एस्पिरिन, हेपेरिन वगैरह यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अब सपोर्टिव में क्या करेंगे, पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, सबसे पहले वो अनकॉन्शियस रह सकता है, सेमी कॉन्शियस रखता है, तो केयर ऑफ लंग्स, केयर ऑफ है ना, कि पेशेंट जो है एस्पायरेट नहीं करे, ठीक है। उसका हाइड्रेशन हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। फ्लूइड लगाएंगे, RL DNS देंगे जैसा रिक्वायरमेंट है ना। अगर PP कम है तो RL वगैरह लगाएंगे, ठीक है। और उसको फीडिंग देने के लिए राइस्ट्रिप लगाएंगे, राइस्ट्रिप फीडिंग करेंगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको राइस्ट्रिप फीडिंग करेंगे, नहीं तो वो पेशेंट मुंह से देंगे तो चूँकि पैरालिसिस है तो क्या करेगा, एक्सपायरेट कर लेगा और लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में जाने से उसको एक्सपायरेशन निमोनिया हो जाएगा, जिससे पेशेंट का फर्दर डिटोरिएट हो जाएगा और पेशेंट मर जाएगा। तो इसलिए हम लोग राइस्ट्रिप फीडिंग करेंगे उसको। राइस्ट्रिप से हम लोग जो है लिक्विड डाइट देंगे, है ना, दूध हॉर्लिक्स वगैरह देंगे राइस्ट्रिप से, ठीक है। फ्लूइड भी, वाटर भी देंगे राइस्ट्रिप से, ठीक है। तो राइस्ट्रिप उसको फीडिंग देंगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है उस कंडीशंस में। उसके बाद में एंड ब्लैडर को मैनेज करना है। ब्लैडर में क्या होगा कि जनरली रिटेंशन होता है, यूरिनरी रिटेंशन होगा, ब्लैडर फुल होगा, पेशेंट को पेन भी फुल होगा, इरिटेबल होगा पेशेंट को, तो उसको कैथेटराइज करेंगे, या क्या करेंगे, ब्लैडर फुल होने से ड्रिबलिंग होने लगेगा, बेड वेटिंग होने, कपड़ा पूरा भीग जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कैथेटराइज करेंगे, ब्लैडर को कैथेटराइज कर लेंगे, ठीक है। और कैथेटराइज करके उसका यूरिन आउटपुट वगैरह मेजर करते रहेंगे, ठीक है। केयर ऑफ बाउल के लिए इसका नेपकिन यूज भी करते रहेंगे, ठीक है। अगर इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का साइन है तो उसमें मैनिटॉल देंगे और इथ्रोलिन देंगे। अगर पेशेंट इरिटेबल है तो इथ्रोलिन देंगे, ठीक है, और मैनिटॉल देंगे। मैनिटॉल जनरली देते हैं 350 ml IV बोलस देते हैं। उसके बाद में 100 ml जो है थ्राइस डेली देंगे फॉर 3 to 5 days, ठीक है। अब
थ्रोम्बोएम्बोली के केस में हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। तो थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोलाइसिस का बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट हम लोग को नहीं मिलता है, इसलिए थ्रोम्बोलाइसिस हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं। अगर पेशेंट 3 घंटे के अंदर में आ गया तो हम लोग थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर से ये थ्रोम्बोलाइज करते हैं, ठीक है। या पहले स्टेप्टोकाइनेस से हम लोग करते थे, लेकिन अब स्टेप्टोकाइनेस यूज नहीं होता है। पेशेंट को मेडिकेशन में एस्प्रिन देंगे, ये एस्प्रिन देंगे 300 मिलीग्राम स्टैट देंगे और फिर 150 मिलीग्राम ओडी देंगे। अगर पेशेंट सेंसिटिव है एस्प्रिन से तो क्लोपिडोग्रेल देंगे। क्लोपिडोग्रेल भी 150 से 25 से 150 मिलीग्राम ओडी डोज में देंगे डेली। पहले हम लोग जो है इबोलाई अगर सीवियर के केस में, इसमें सीवियस में जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन के केस में देखते थे कि क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ और जाके लॉन्च किया, उसमें हम लोग एंटीकोगुलेंट हेपेरिन का यूज़ करते थे। 5000 यूनिट्स हम लोग पहले हेपेरिन देते थे, एसी देते थे, ठीक है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन प्रूव रहेगा तब, नहीं तो इसका साइड इफेक्ट है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इससे होगा जहाँ तहाँ ब्लीड होगा। करें हेमरेजिक के केस में दे देंगे गलती से एस्प्रिन और हेपेरिन या थ्रोम्बोलाइसिस। हेमोरेजिक के केस में नहीं देना, हेमरेजिक के स्टॉक में नहीं देना, नहीं तो पेशेंट सडन कोलैप्स कर जाएगा। ये जो है सिर्फ है इस्केमिक स्ट्रोक के केस में देंगे, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के केस एम्बोलिक की काउज रहेगा तब देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग मैनेजमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क फैक्टर है पेशेंट के साथ में, उसको मैनेज करेंगे। अगर पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करेंगे, इंसुलिन से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना है, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ARB हम लोग यूज़ करेंगे, ARB कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर तो हार्ट का पेशेंट है तो उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है, एफ है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट करेंगे। हार्ट फेल्योर है तो हार्ट फेल्योर का ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये इस तरह से हम लोग पेशेंट को ट्रीट करते हैं। थैंक यू।